Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia. Okay, so my name is Alia Wahid and I am going to teach you about the chronic inflammation. As you know, in the previous lecture, we have covered all the things about the acute inflammation. We have covered what is happening inside. We have discussed the components of acute inflammation, which was like vascular changes and cellular event. We have discussed them in whole detail. We discussed the outcome, morphological appearance of the acute inflammation. Then we have discussed very important thing, which is the mediators of acute inflammation. We have covered it. Now we are going to start whenever we have a persistent injury, or we have a persistent or very long prolonged inflammation, then then the acute inflammation convert into the chronic inflammation. So what is chronic inflammation, what are the features of it? We will discuss the everything about it. So chronic inflammation, as its name indicates, so it will be last longing. I mean, it will be very long, long lasting. ठीक है? Okay, I have write it wrongly. So it is long lasting inflammation that can be from weeks to several years. And why what it involves, like when we discuss the acute inflammation, we have discussed it is the short lived and it is a quick initial response to an injury. And we have discussed the acute inflammation involves immune cells, body proteins, mediators, and these kind of things were involved in it. But now the chronic inflammation involves a lot of things, like we are discussing now. First is the continuous or ongoing inflammation. So ongoing of inflammation is the first thing. Second thing is that the tissue injury, prolonged tissue injury is occurring in it. Tissue damage, you can say. When it prolongs, it become a chronic inflammation. And healing often through the fibrosis. So healing is also the part of chronic inflammation, mostly fibrosis. There will be the formation, the fibers will accumulate at the site of the injury, and they form and they do the process of fibrosis. So these are the things that are involved in the process of chronic inflammation. So your acute inflammation involves the vascular changes, it involves the intrafiltration of neutrophils, and it is the short lived. But when we discuss the chronic inflammation, it is just the opposite of acute one. It consists of mononuclear cells like macrophages, and so it also involves the another thing, which is mononuclear cells, which are mostly lymphocytes or macrophages in nature. And it also includes the tissue damage and repair. It's also the part of it, not only fibrosis, but also we can combine the angiogenesis angiogenesis with it. So now, when someone told you that there is a fibrosis in any organ of our body, like we have lung fibrosis, so you should know that it's mean it is there is ongoing of a chronic inflammation. And someone told you that in any organ angiogenesis is occurring. Sorry for that. So so angiogenesis mean there is the formation of new blood vessels. So if in any organ, if the new blood vessels form, so it's mean in that organ the chronic inflammation is happening right now. So it is a failed attempt to heal. It is not a proper healing. The healing inside the chronic inflammation is a failed attempt to heal. So, in the chronic inflammation, death occur due to the chronic inflammation is always due to the fibrosis. Always a tissue die due to the fibrosis, because in fibrosis all the connective tissues came there. For example, lung fibrosis, liver fibrosis can occur. In acute inflammation, healing also occur, but in chronic inflammation, scar formation is done by severe fibrosis.
So, healing is the part of both chronic and acute inflammation. But the healing of chronic inflammation is not a normal healing. It is a scar formation or it is the fibrosis that results into the death of the dead tissue, and it occurs when there is failure to resolve the acute inflammation. Always we have seen the difference between the acute and the chronic inflammation, and we have discussed that chronic inflammation is a it's a failure to resolve the acute inflammation. It results into the chronic inflammation. Now we will see some key features that will indicate that in our body there is an ongoing of acute chronic inflammation. So the features of chronic inflammation. First is the cellular infiltration. What kind of cellular infiltration in that way? If you remember, in acute inflammation, we have discussed that neutrophils are the cellular infiltration in case of acute. But when we move toward the chronic inflammation, it mostly consists of mononuclear cells, which are macrophages, lymphocytes, and it also consists of some plasma cells which produce the antibody also. And yeah, so these kind of cells are present there. Macrophages and lymphocytes, they are not in acute inflammation, and the mononuclear cells, they are the major players in the chronic inflammation. So whenever you see these mononuclear cells in an infection, it's mean it is a chronic inflammation, not the acute one. The second thing about it is the tissue destruction. If in any region the tissues are damaged or destructive there, it's mean it is a chronic inflammation. It is caused by production of some toxic substances. Third key feature is the repair, or in the repair angiogenesis will occurring. In geogenesis will be doing there, mean new blood vessel will form, and there will be the fibrosis or scar formation will be at that site. So whenever you see fibrosis and geogenesis at any site, it's mean the chronic inflammation is ongoing there. So we have discussed it. Now we will discuss some causes of chronic inflammation, just as we have seen in the acute inflammation. So now discuss the causes of it. So I am gonna to raise something. Now I am going to write the causes of it. So the first cause is the persistent infection, ongoing continuous infection, which is also the cause of acute inflammation, but now the infection is prolonged. It leads to the delay type of allergy, for example delay type of hypersensitivity, which is the T cell mediated immune response. So always whenever in the body delay type of hypersensitivity is ongoing, it's mean it is a chronic inflammation. It is not acute one, because acute is for short time. If something is delaying for more time, it's mean it is a chronic state, not the acute state. And you can see the examples of a lot of infections which are like TB. It is very prolonged, like the Staphylococcus, which is caused by Treponema pallidum. Next, a lot of fungi or viruses, they can also be cause such infections which are too much prolonged. Okay, so in TB, what is happening in TB? We have delayed type 4 hypersensitivity. Okay, because why? Because in TB, your normal parenchyma cells of your lungs, they are replaced by the fibrous connective tissues, and they form the scar at that site, and that's why the TB is happening. So yeah, so these kind of things happen. Second thing is the autoimmune disorder, so you can say immune mediated diseases. So whenever immune responses, okay, यू एन ई इस तरह से आता है, ठीक है.
So, autoimmune disorders like overactive immune responses against our own self antigen, or you can say the repeated episodes of acute inflammation, can cause the chronic inflammation. For example, of autoimmune disorders are like arthritis, rheumatoid arthritis, and the inflammatory bowel disease. They are the autoimmune disorders that are chronic one, and they are due to repeated episodes of acute inflammation. Next is the allergy can happen, like in the case of the asthma, there is the allergy here. It is also a immune response, but not autoimmune. Next type of causes, third, is the exposure to the toxic agent. Exposure to toxic agent. These agents can be exogenous and can be endogenous. Exogenous mean non-degradable materials. For example, silica. It cause a lung disease, like disease name is silicosis, in which silica enter into your lungs. So it is exogenous substance that enter into lung and cause this disease. Second example is the endogenous substance, like cholesterol crystals. They will deposit into your arteries and causing atherosclerosis, narrowing of your blood vessels. Similarly, urate crystals, they are deposited in the joints and they cause gout conditions. So these kind of agents can contribute to the chronic inflammation. Okay, so the next thing that we will discuss is the mild chronic inflammation in other diseases. So some diseases have mild inflammation, chronic one, and then they will become more or more severe. For example, the disease of neurodegenerative disease, like the neurodegenerative diseases like Alzheimer, Alzheimer disease, in which memory loss there, or it is a neuroinflammatory diseases. Similarly, some metabolic diseases like the diabetes is a most, and the metabolic syndrome, in which in the diabetes type 2 mostly insulin resistance will occur, signaling blocking, because a high sugar intake can increase the ketoacidosis, and very high ketoacidosis can cause death. Similarly, cancer is the inflammation is also an inflammatory response that may promote the tumor growth, and radiations can also cause the immune responses. So actually, our chronic inflammation is the prolonged type of inflammation. Next, you can see some examples of chronic inflammation like the peptic ulcer, which occurs due to prolonged smoking, or taking tea, and taking spicy food. So first it is a acute inflammation, but it become chronic inflammation due to recurrent epithelium injury. Like the patient have the ulcer, but he is not stopping herself from taking the smoke and from taking the spicy food, and he is continuously doing that, when and her condition is even progression and become a chronic peptic ulcer. Similarly, autoimmune disorders, they become chronic when there is a persistent immune response that lead to the tissue damage again and again, and these kind of things will occur. Histological changes in the chronic inflammation is that mononuclear cell infiltration, and they will aggregate at this site. Second histological change is the tissue destruction that we have discussed, and third thing is that fibrosis and angiogenesis, which is the part of repair in case of chronic inflammation it will be doing. So these all are the histological changes that you will see. Okay, so you have know that in acute inflammation we know neutrophils are there, but in chronic one we have macrophages, lymphocyte, and plasma cells. Acute inflammation is short,
while chronic is very long. And healing is that acute inflammation can heal, it can resolve, but chronic cannot be healed. It is a fibrosis a thing. And the vascular changes in case of acute is very prominent, but vascular changes in case of but the vascular changes in case of chronic inflammation, they are very minimum. ओके बच्चों, सो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मेडिएटर्स क्या हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, जिससे हम लोगों ने बात की थी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स की, अब हम बात करेंगे क्रॉनिक की। क्रॉनिक के मेडिएटर ज़्यादातर यही सेल्स हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। लाइक वी हैव डिस्कस दैट मैक्रोफेजेस आर देयर, लिम्फोसाइट्स आर देयर। सो chronic inflammation involves complex interaction between several cells and secreted mediators. So mostly there is the cells in it. Okay, so in the chronic inflammation mediators, we also consider the cells in it. And the first cell that involves in the chronic inflammation is the macrophages. Okay, so they are the dominant cells of the chronic inflammation. How they are originate, you should know about it. So actually they are derived from the circulating monocytes. So monocytes, they migrate toward the site where the injury is happening within 24 to 48 hours. And then and from where the monocyte is producing, let's discuss it first. So monocytes are producing from the bone marrow, and their duration is very short, for 24 hours only, and they just circulate in our blood. And when they reach at the site of the tissue injury, they swallow and they become macrophages. So how the we will detailedly discuss that how macrophages, monocytes, convert into macrophages. So the first step is that injury occur. So first step is the injury. Whenever you injury is occurring, then you know the T lymphocyte, the adhesion molecules, and the chemokines, they will send signals to your monocytes. Okay, they will send signals to your monocytes, not the macrophages. Now macrophages are not there, monocytes are there within 24 to 48 hours of the injury. Then what will happen now? Now your monocytes will reach into the extravascular tissues, or you can having the extravascular fluid. So ये जो यहाँ पर हमारे पास वेसल है, और वेसल के बाहर ये जितना स्पेस है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। और इस एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के अंदर ये जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो पानी है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। इस फ्लूइड में मोनोसाइट्स जो हैं वो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मोनोसाइट यहाँ पर आ गया, देन दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू द मैक्रोफेजेस, दे विल स्वेलो। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये वाले, ये स्वेलो हो जाएंगे और ज़्यादा फूल जाएंगे। And the macrophages, now they have the longer one thing you have to told you, एक मोनोसाइट से दो मैक्रोफेजेस बनेंगे। एक मैक्रोफेज नहीं बनेगा, दो मैक्रोफेजेस बनेंगे, जिनका लाइफ स्पैन यानी इनकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी मोनोसाइट से, क्योंकि मोनोसाइट्स हमने कहा बहुत शॉर्ट लिव हैं, 24 आवर्स के लिए होते हैं मोनोसाइट, ये सिर्फ 24 आवर्स ज़िंदा रहते हैं। जबकि मैक्रोफेजेस दे विल कैन सर्कुलेट फ्रॉम 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक, ये जो है वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, और इनके पास, ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इनके पास फैगोसाइटोसिस करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। सो इफ़ समवन कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन द वाइवा दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट मोनोसाइट इनटू द मैक्रोफेजेस, then you will tell the reason that one monocyte convert into the two macrophages. That's why it can perform the phagocytosis activity more efficiently. And the second thing is that the half life or the lifespan of macrophages is greater than the monocyte lifespan. So that's why they are more efficient, and they can more efficiently do the phagocytosis or destroying all the microbes that are present out there. Now the location of your macrophages, normally where they are present. So normally they are scattered in your most of your connective tissues,
and your organs also. In every organ, the macrophages has its own name. Like if you see the liver, in liver macrophages are present, and in liver the macrophages are called as the Kupffer cell. K, the spelling of the Kupffer cell, you can see it, Kupffer, Kupffer cells in the liver. And in the spleen or the lymph nodes, they are called as sinus histocytes. In the CNS, these macrophages are called as microglial cell. And in the lungs, these macrophages are called as alveolar macrophages. अच्छा, जब बहुत सारे और बहुत सारे जब मैक्रोफेजेस आपस में मिल जाते हैं ना, तो इन पूरे सेल्स को इकट्ठे मिला के हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। इसको शॉर्टली हम लोग इस तरह से लिखते हैं MNPS, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। जब बहुत सारे मैक्रोफेजेस ऐसे इकट्ठे हो गए, एग्रीगेट बना लिया, तो उसे हम MNPS जो है ना वो कह देते हैं। इसका पुराना नाम जो था ना वो था हमारे पास RES, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। ठीक है, अब इसे MNPS कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको बताओ, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या है, MNPS क्या है। सो मैक्रोफेजेस का कलेक्शन, एग्रीगेशन को हम ये नाम दिए, उसका पुराना नाम, नया नाम, ये सारे आपको बताओ। अब आगे आ जाती हैं टाइप्स। मैक्रोफेजेस की आगे टाइप्स आ जाती है, मतलब मैक्रोफेजेस किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके एक्टिवेशन के पाथवे पे डिपेंड करते हुए उनकी हमने 2 टाइप्स बनाई हुई हैं। ठीक है, अब हम उन दोनों टाइप्स को देख लेते हैं। M1 और M2 उनका नाम है, और हम उनको देख लेते हैं एंड में। हाँ, अच्छा, रोल ऑफ मैक्रोफेजेस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनका रोल यही है, एक तो फैगोसाइटोसिस करनी है, किल करना है माइक्रोब को। दूसरा ये साइटोकाइंस की सिक्रीशन, TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1 और जो कीमोकाइंस है ना जो कि इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, उन्हें रिलीज़ करवाते हैं। दूसरा एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, टिश्यू रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं। और T लिम्फोसाइट्स को कहते हैं कि हाँ जी भाई तुमने भी एक्टिवेट होना है, और तो उन्हें भी एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, फीडबैक करते हैं T लिम्फोसाइट्स से। तो इनके बगैर, मैक्रोफेजेस के बगैर T लिम्फोसाइट्स भी एक्टिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी माइक्रोफेजेस की टाइप्स के ऊपर कि कितनी टाइप्स हैं। M1 और M2 2 टाइप्स हैं इसकी, और हम अब इसी के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। सबसे पहला जो है ना टाइप, उसे हम कहते हैं क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो क्लासिकली एक्टिवेटेड हो, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस वर्ड मैं नहीं लिख रही, M1 जिसे ना कहते हैं। क्लासिकली का मतलब क्या है कि ये इनिशियली एक्टिवेट, सबसे पहले यही एक्टिवेट होते हैं, इसलिए हमने इसे क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का नाम दिया। स्टिमुलाई क्या है इसका, एंडोटॉक्सिन, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हैं इसके स्टिमुलाई हैं। T लिम्फोसाइट्स, साइटोकाइंस, TNF, गैमा और फॉरेन सब्सटेंसेस जो हैं वो इसको स्टिमुलेट करते हैं। मोस्टली आप कह दो कि माइक्रोब इसे खुद स्टिमुलेट करता है कि भाई हाँ भाई तुम बनना जो है ना वो स्टार्ट हो, और फिर ये बनना स्टार्ट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि ये ROS, NO और लाइसोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करवाते हैं, जिससे फैगोसाइटोसिस होती है। और साथ ही साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 32, जिससे इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड इफ़ इट कैन नॉट एलिमिनेट द माइक्रोब, देन द अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस बिगेन टू फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों मैं एक डायग्राम बनाती हूँ जिससे ना तुम लोग सारा ये समझ जाओगे। ये आ गया एक नॉर्मल क्या लो जी मैक्रोफेज, और इसने अभी एक्टिवेट होना है। सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा क्लासिकल पाथवे से। अब उसकी एक्टिवेशन के लिए इसे कुछ ना कुछ चाहिए, इसे कुछ स्टिमुलाई चाहिए। स्टिमुलाई कहाँ से आएगा, एक तो माइक्रोब के एंडोटॉक्सिन से आएगा, दूसरा INF गैमा भी इसे स्टिमुलेट कर लेगा। और स्टिमुलेट हो जाने के बाद ये जो एक्टिवेटेड इसकी ये फॉर्म आएगी एक इस तरह वाली। इस फॉर्म ने आगे क्या करना है, इस फॉर्म ने ROS प्रोड्यूस करवाने हैं, NO प्रोड्यूस करवाने हैं,
और या लाइसोसोमल एंजाइम प्रोड्यूस करवाना है, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस ज़्यादा होगी। दूसरा काम जो ये करेंगे ना, ये साइटोकाइंस की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 23, इन सबको बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया पहली चीज़। अब अगर इतनी फैगोसाइटोसिस हो जाने के बाद भी अगर माइक्रोब नहीं मरता, तब आपका हो जाएगा अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट। अब अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव पाथवे में इसमें भी माइक्रोब क्या होगा? एक्टिवेट होगा, लेकिन स्टिमुलाई अब चेंज होंगे। यहाँ पर स्टिमुलाई होगा इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 14। वहाँ पर कौन एक्टिवेट कर रहा था? माइक्रोब और IFN गैमा। यहाँ पर कौन एक्टिवेट कर रहा है? इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 14 एक्टिवेट कर रहे हैं। और भी साइटोकाइंस जो हैं वो इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, जैसे हेल्पर टी सेल्स हो गए, मैस्ट सेल्स और एसिनोफिल्स से ना इंटरल्यूकिन 13 जो है वो रिलीज़ होता है और वो फिर अपना काम दिखाता है। ठीक है, अब आगे इसने जाके क्या करना है कि इसने ना एक तो सबसे पहले इसने ग्रोथ फैक्टर और इसने क्या रिलीज़ करवाना है? ग्रोथ फैक्टर, और इसने TGF बीटा इसको रिलीज़ करवाना है, ताकि टिश्यू रिपेयरिंग जो है ना वो स्टार्ट हो सके। दूसरी चीज़ जो ये रिलीज़ करवाएगा, काम करेगा, वो है इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा। इन्हें रिलीज़ करवाना है ताकि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट आए। ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो यहाँ पर रिपेयरिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंक्रीज़ हो रही है फैगोसाइटोसिस और इंक्रीज़ ही हो रही है। सो इनका फंक्शन क्या है? नॉट एक्टिवली माइक्रोबिसाइडल। सो इसमें काम माइक्रोबिसाइडल नहीं है, माइक्रोब को कुछ नहीं कह रहा है, ये ना ही माइक्रोब को किल कर रहा है। इसका रोल है टिश्यू रिपेयर में, ज़्यादातर टिश्यू रिपेयर में ग्रोथ फैक्टर बढ़ा के। ग्रोथ फैक्टर कैसे बढ़ाएगा? TGF बीटा से। और ये टिश्यू रिपेयर या एजियोजेनेसिस को ज़्यादा करवा रहा है। इसी तरह फिब्रोब्लास्ट को बढ़ा रहा है, कोलेजन ज़्यादा बढ़ा रहा है ताकि फिब्रोसिस हो सके और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट आ सके। तो ये सारे काम हो गए। सारे एक्शन हो जाने के बाद, ये जो माइक्रोब ने अपने सारे एक्शन कर जाने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मैक्रोफेजेस बाय लिम्फेटिक सिस्टम। सो ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? लिम्फेटिक। जाहिर बात है, हर किसी की एक डेथ लिखी हुई है। तो मैक्रोफेजेस चाहे वो क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट हो, चाहे वो अल्टरनेटिव पाथवे से हो, इन्होंने मर जाना है। और मरना कहाँ है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाके ये मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो थे पहले सेल जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जो दूसरे सेल हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर के तौर पे यूज़ होते हैं, उन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरे सेल्स जो हैं वो इसिनोफिल्स आ जाते हैं, मैस्ट सेल भी इन्हीं का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये इनके मेडिएटर्स थे। हम लोग अब इसमें लिम्फोसाइट्स को भी डिस्कस करेंगे, इसिनोफिल्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखेंगे हम अपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, और फिर हमारा ये लेक्चर यहाँ का एंड होगा। ठीक है, सो मैं जल्दी से रेस करती हूँ और फिर लिम्फोसाइट पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो ये मेजर ड्राइवर्स हैं आपके इन्फ्लेमेशन के। कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो क्रॉनिक हो या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, ये ब्लड में इन्फिल्ट्रेट क्यों हुए? वजह ही कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई नेक्रोसिस होती है, कोई टिश्यू डैमेज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ना न्यूट्रोफिल्स आते हैं, वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स आ रहे होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स हैं, तुम लोगों को पता ही होगा, लिम्फोसाइट्स बी सेल्स और लिम्फोसाइट टी सेल्स। नाम ही मशहूर है इनके। ये कहाँ जाता है? प्लाज्मा में जाता है। हमारे पास पता है आपको, प्लाज्मा सेल्स भी इन्हें हम कहते हैं, और वहाँ पर ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाता है। ये जो टी सेल्स होते हैं ना, इन्हें हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम CD8 सेल्स भी कहते हैं। जो CD4 सेल है ना, ये है हेल्पर टी सेल्स, इन्हें हम, और ये होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये जो अब हेल्पर टी सेल है ना, इनके 3 सब यूनिट हैं ये हेल्पर टी सेल के। ठीक है, हेल्पर टी सेल से आगे हम लोग चलते हैं। इनके 3 सब यूनिट है। एक हम इसे कहते हैं TH1,
एक को हम कहते हैं TH2 और एक होता है TH17, सॉरी 17, ठीक है। TH1 क्या कर रहा होता है, ये प्रोड्यूस करता है IFN गैमा, जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। INF गैमा की हमने बात की थी ना क्लासिकल पाथवे से, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहा होता है। सो इट्स मीन T सेल्स का मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन के साथ रिलेशन है, ठीक है। बात कर लेते हैं TH2 की। ये क्या कर रहे हैं, ये और इंटरल्यूकिन्स को रिलीज़ करवाता है, लाइक इंटरल्यूकिन 30, 4, 5 और 13, ये सारे इसी से रिलीज़ होते हैं। और ये सारे मैक्रोफेजेस और एसिनोफिल्स उन सब को एक्टिवेट करवाने के लिए अपना रोल अदा करते हैं बाय अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर, ठीक है। सो अगर मैक्रोफेजेस को अल्टरनेटिव पाथवे से एक्टिवेट करना है तो TH2 चाहिए, और अगर क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट करवाना है तो TH1 चाहिए। अब TH17 का क्या रोल है, TH17 ने इंटरल्यूकिन 17 को ही रिलीज़ करवाना है, और ये कीमोकाइंस और दूसरे मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ बुलाएगा। सो ये एज अ कीमो टैक्सिस के तौर पे काम करेगा। बाकी जो है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करने के लिए अपना रोल प्ले करें, इसलिए T लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का ना आपस में बड़ा क्लोज रिलेशन है। बोथ वो कह रहे हैं TH1 और TH17 जो सेल्स है ना, ये डिफेंस देते हैं हमें अगेंस्ट द बैक्टीरिया और वायरसेस, बैक्टीरिया से भी बचाते हैं और वायरसेस से भी बचाते हैं। और जो TH2 सेल्स हैं ये हमें डिफेंस देते हैं अगेंस्ट द पैरासाइट, क्योंकि TH2 सेल्स इसिनोफिल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जो है ना TH2 आएंगे हमेशा, और बैक्टीरिया हो या वायरस का कोई भी इन्फेक्शन हो तो TH1 आएंगे और TH2 आएंगे है, ठीक है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है वाईवे के अंदर कि अगर आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो कौन सा लिम्फोसाइट आएगा, तो TH2 आएगा, TH1 या TH17 का नाम नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, अब लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का आपस में क्या रिलेशन है, ये तो तुम लोगों को समझ आ ही गया है कि इन दोनों के अंदर एक बाई डायरेक्शनल वे का इंटरेक्शन है दोनों के अंदर, और दोनों ही एक दूसरे को जो है ना वो एक्टिवेट कर रहे हैं। These macrophages present antigen to the T cells and release cytokines, and it also activate the T lymphocytes, ठीक है। अब T lymphocytes क्या करते हैं, ये रिलीज़ करवाते हैं साइटोकाइंस को, इंटर INF गैमा और इंटरल्यूकिन 17 को, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, और मैक्रोफेजेस के एक्टिवेट होने की वजह से प्रोलॉन्ग होती है इन्फ्लेमेशन। इसी तरह अगर हम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की बात करें तो उससे को बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन 6, 12 और 32, जिससे T लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, और T लिम्फोसाइट रिलीज़ करवाते हैं TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 17, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस, यानी कि ये एक दूसरे को ही एक्टिवेट करवा रहे हैं। मैक्रोफेज के एक्टिवेट होने से T लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, T लिम्फोसाइट के एक्टिवेट होने की वजह से दोबारा मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, एक दूसरे को ही एक्टिवेट करते जाएंगे, और इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग होती जाएगी। और जितनी इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया या ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया, तो इन लोगों में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है टिश्यूज़ के अंदर ना, तो उनमें लिम्फाइड ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। अच्छा, इन लिम्फ नोड्स ऑल दी सेल्स आर प्रेजेंट, सो इन्फ्लेमेशन साइट रिजेंबल द लिम्फ नोड, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसिनोफिल्स की, जो तीसरे सेल्स हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे हम क्या कह रहे हैं, इनको सिनोफिल्स, जो कि ज़्यादातर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं। सो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जी और IgE मेडिएटेड रिएक्शंस में होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो रीसर्किट होते हैं, ये कीमोकाइन से, एक कीमोकाइन है जो इनके ऊपर एक्टिवेट करता है, उसे हम कहते हैं इकोटैक्सिन। ये लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल और ये एपिथेलियम के सेल्स से ना ये ड्राइव्ड होते हैं, इकोटैक्सिन, ठीक है। अब ये जो इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स है ना, उसके अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि हाईली केटानिक होती हैं, और ये
पैरासाइट के अंदर जाके ना उसकी एपिथेलियम को डैमेज कर देता है। तो इस तरह से इसिनोफिल पैरासाइट को किल कर पाते हैं। ठीक है, रिसर्किट कैसे होंगे? एक साइटोकाइंस के जरिए जिसे हम इकोटैन कहते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल और एपिथेलियम सेल से रिलीज होता है या ड्राइव्ड होता है। और इकोसिनोफिल किस तरह से पैरासाइट को किल करते हैं? इसके अंदर एक ग्रेन्यूल होता है जिसे हम इकोसिनोफिल ग्रेन्यूल कहते हैं, और उस ग्रेन्यूल के अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि बड़ी कैटानिक होती हैं और जो पैरासाइट की सेल वॉल को डैमेज करके रख देती हैं, उन्हें चीर फाड़ के रख देती हैं। फिर बच्चों जो नेक्स्ट चौथा जो सेल आ जाता है ना, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पार्ट है हमारे पास, जो मैस सेल है। ठीक है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का भी पार्ट है लेकिन ज़्यादा क्रॉनिक का है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होते हैं और इनका रोल जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी है, एलर्जी में भी इनका काम है। हिस्टामिन को रिलीज़ करवाते हैं, आर्चिडोनिक एसिड के मेडिएटर्स को रिलीज़ करवा रहे हैं, साइटोकाइंस को रिलीज़ करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग पढ़ लें कि अगर न्यूट्रोफिल्स आपके प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये हॉल मार्क है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। अगर बहुत सारे एक्सेसिव न्यूट्रोफिल्स की इंटरफिल्ट्रेशन हुई है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं, सो इसका मतलब ये है कि प्रिसिस्टेंट माइक्रोब है, निक्रोटिक सेल है और मेडिएटर्स आ गए। इसका मतलब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अब इसे आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं कहेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इन इन्फ्लेमेशन, हैविंग ऑल द टाइप्स ऑफ द मेडिएटर्स लाइक न्यूट्रोफिल्स होंगे तो एक्यूट होंगे, लाइक सारे मेडिएटर्स आ जाए, न्यूट्रोफिल भी आ जाए, लिम्फोसाइट्स भी आ जाए, मैक्रोफेजेस भी आ जाए, सो हम इसे फिर कहेंगे एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, या हम इसे इन्फ्लेमेटरी लीजन भी कह सकते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन इन द बोन्स, ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाती है, बोन्स के अंदर ना ऑस्टियोमाइलिटिस जब होती है तो ये इस तरह की इन्फ्लेमेशन है जिसमें सारे सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, मैक्रोफेजेस भी होंगे, लिम्फोसाइट्स भी होंगे, सारे किस्म के सेल्स होंगे। तो हम इसे फिर एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, या हम इसे इन्फ्लेमेटरी लीजन्स कहेंगे। ये चीज़ थी इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में जो है ना वो आप लोगों से पूछी जा सकती है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ना अपने दिमागों में बिठा लो। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चों हमारे पास आ जाती है ना, वो आ जाती है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन मॉर्फोलॉजिकल कैसे दिखेगी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने बात की थी कि सीरियस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिब्रस इन्फ्लेमेशन, फिब्रस टिश्यूज़ आ जाते हैं, इस तरह की इन्फ्लेमेशन थी। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना, इसमें हमारे पास बनेंगे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका डिटेल क्या है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सब क्या होगा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, नाम से ही बता रहे कोई ग्रैनुलर सी चीज़ जो है ना वो हमारे पास होनी है। सो ये एक यूनिक टाइप है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, जिसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं कि बहुत सारी एग्रीगेशन होती है। किस चीज़ की? एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की, जिसे हम एपिथेलॉइड सेल्स भी कहते हैं, और लिम्फोसाइट्स। ये बहुत सारे सेल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और ये ग्रैनुलोमेटस बना देते हैं। इस इन्फ्लेमेशन में ग्रैनुलोमास बनता है, ग्रैनुलोमास। ठीक है, ग्रैनु इस इन्फ्लेमेशन में क्या बनेगा हमारे पास? ग्रैनुलोमैस, ये बन जाएगा। और ये ग्रैनुलोमास में क्या चीज़ होंगी? दो चीज़ें होंगी, मैक्रोफेजिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? मैक्रोफेजिस होंगे, और इसके अंदर लिम्फोसाइट। ये दो चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब ये ग्रैनुलोमास की फॉर्मेशन का पर्पस क्या है? सो इट इज़ प्रोड्यूस टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल एजेंट, यानी माइक्रोब्स वगैरह। इट विल किल द माइक्रोब, एंड इफ द माइक्रोब इज रेजिस्टेंस देन योर ग्रैनुलोमास विल बी रेजिस्टेंट, persistent, and it will make a scar. Fibrosis will occur and the organ will dysfunction. For example, in TB, due to the formation of fibrosis, the lungs will be fibrosis and they will be dysfunction. Now your normal parenchyma cells convert into the connective tissue. Now, what are the causes of formation of granulomas? So the first cause is the infective agent.
Second cause is the immune mediated condition, and third is the foreign reaction. First is the infectious agent. For example, in tuberculosis, TB, like we are discussing the causes of it, or first is the infection, and in the infection we are discussing TB, which is occurring due to bacterium tuberculosis. Due to this bacteria, TB is occurring to you, and it is causing the cascading. It is producing the cascading granulomas. I mean, it is producing central necrosis. So it gives a cheesy like appearance. इट हैज़ अ सेंट्रल नेक्रोटिक जोन. सो इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल नेक्रोटिक जोन हमारे पास होता है जिसके अंदर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, और उसके गिर्द हमारे पास एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं. ये एपिथेलॉइड सेल्स यानी मैक्रोफेजेस यू कैन से. फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स का सेल का कोलर आ जाता है, और एंड में हमारे पास स्कार टिश्यू की लेयरिंग आ जाती है. इस तरह की अरेंजमेंट होती है इस ग्रैनुलोमा की. स्कार टिश्यू जो है ना वो आ जाते हैं ओल्ड ग्रैनुलोमा में. जो ग्रैनुलोमा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, उसमें स्कार टिश्यू आते हैं. और अगर कोई डिज़ीज़ जैसे स्कार टिश्यू दो डिजीज़ में नहीं होते, ट्यूबरकुलोसिस में तो होते हैं, क्रॉन्स डिज़ीज़ और एक और डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं स्कार कोलाइडस. इसके अंदर ये स्कार फॉर्मेशन नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ट्यूबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए ज़्यादा ROS सिक्रीट होता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा स्कार टिश्यू बनते हैं और ज़्यादा चीज़ें रिलीज़ होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर. ठीक है ना बच्चों. उसके बाद उन्होंने ज़रा सी डिटेल हमें दी हुई है लेप्रोक्सी की, स्टेफाइलस की और कैच स्क्रैच डिजीज़ की. ठीक है, लेप्रोक्सी क्या है? लेप्रोक्सी में नॉन सिस्टिंग ग्रैनुलोमा बनेगा, यानी नॉन चीज़ी ग्रैनुलोमा. TB में तो चीज़ी ग्रैनुलोमा बन रहा था ना. नेक्स्ट डिजीज़ आ गई लेप्रोक्सी, जिसमें नॉन चीज़ी ग्रैनुलोमा बनेगा. ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है. ये भी उसी फैमिली का बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस का जिस तरह से है ना, उसी तरह ही माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई है, लेकिन इसमें नॉन चीज़ी इन्फ्लेमेशन होती है. फिर नेक्स्ट आगे डिजीज़ आ जाती है स्टेफाइलस, जो कि ट्रिपोनिमा प्लैटिनम की वजह से होता है. इसके अंदर भी नेक्रोटिक सेंटर्स आ जाते हैं. फिर नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है कैट स्क्रैच डिजीज़. इसके अंदर डेब्राइटस साथ आ जाती हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलस की वजह से होती है. अच्छा बच्चों, इसमें हमने दो चीज़ों की बात की. हमने एपिथेलॉइड सेल्स की बात की. एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं? H&E preparation. Some of the activated macrophages in granuloma have pink location when they have stain. उन्हें हम फिर एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं, जो कि एपिथीलिया से रिजेंबल करते हैं. तो आपके कुछ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस पिंक अपीयर होते हैं स्टेन करने के बाद, और उन्हें हम फिर एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं क्योंकि वो एपिथीलिया से मिलते हैं. जेंट सेल्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे ये जो एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इनके गिर्द ये कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट इनके गिर्द आ जाती है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल बन जाते हैं जिनका डायमीटर 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है. और ये बहुत सारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपस में जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये जेंट सेल बनता है. अब सेकंड कॉज हम डिस्कस कर लेते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, जिसे हम कहते हैं इम्यून मेडिएटेड कंडीशन, यानी क्रॉन डिजीज़ हो गई. इसके अंदर एग्जांपल हम क्रॉन्स डिजीज़ की देंगे. इट इज़ आल्सो अ नॉन सीस्टिंग ग्रैनुलोमा इन द इंटेस्टाइनल वॉल, यानी कि सीस्टिंग का मतलब यह है कि नॉन चीज़ी अपीयरेंस यहाँ पर होगी. अच्छा, स्कार कोलाइडोसिस दूसरी जो एग्जांपल है डिज़ीज़ की, उसका नाम स्कार कोलाइडोसिस है. अब ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास आल्सो कॉल्ड द फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा. इसकी ना नॉन एटियोलॉजी नॉन नहीं है कि किसकी वजह से हुआ है. हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये किसी इनर्ट फॉरेंजिन बॉडी की वजह से ना हो रहा है. अच्छा, थर्ड जो कॉज आ जाती है वो आ जाती है फॉरेन बॉडी रिएक्शन, यानी कि कोई बाहर से कोई मटेरियल आया, कोई स्प्लिंटर या स्ट्रक्चर्स आया जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई और ग्रैनुलोमा बना.
मोर्फोलॉजी क्या है? एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस विद डिस्टिंक्ट बॉडीज सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स। ये निशानी है ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, जिसकी एग्जांपल में टीबी, क्रॉन्स डिजीज और सैक्रोडोलाइटिस आ गए। ठीक है, इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स भी आपको मिल सकते हैं, और आप में यहाँ पर केसियस नेक्रोसिस मिलेगी इन टीबी, और नॉन केसियस नेक्रोसिस मिलेगी इन केस ऑफ क्रॉन्स एंड स्कारकोडाइटिस। अच्छा, उसके बाद हम सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट बात कर लेते हैं इन्फ्लेमेशन की। एक तो फीवर होगा। फीवर किसकी वजह से होगा? इंटरल्यूकिन 1 और TNF की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन PE2 की वजह से इसकी सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है हाइपोथैलेमस के अंदर, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, प्रोटीन या कोई भी एंडोजीनियस पैथोजन आता है तो वो ल्यूकोसाइट को स्टिमुलेट करता है साइटोकाइंस बनाने के लिए, और साइटोकाइंस जब ज़्यादा होते हैं तो फीवर हमारे पास होता है। और फीवर को कम करने के लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। सेकेंड जो सिस्टमेटिक इफेक्ट है उसे हमने एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन्स कहा था, जिसकी वजह से मेडिएटर्स TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ होती हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन में हमने कहा कि लीवर में सिंथेसाइज होती है कुछ प्रोटीन, CPR रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि बैक्टीरिया के साथ बाइंड करती है और ऑप्सोनिन का काम करती है। इसी तरह दूसरी प्रोटीन है सीरम एमोलाइड A प्रोटीन, वो भी ऑप्सोनिन का ही काम करती है। और तीसरी आ जाती है फिब्रोनोजिन के लेवल। फिब्रोनोजिन जो है ये बाइंड कर देता है एरिथ्रोसाइट के साथ और उन्हें उनका एक स्टैक बना देता है, और जिसकी वजह से हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करते हैं ताकि हम फिब्रिनोजिन का लेवल देख सकें। तीसरी चीज़ आ जाती है लूकोसाइटस, जिसमें हम WBC का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ देखते हैं। ल्यूकोमेडाइट आर्थराइटिस का जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है। तो एंड में ये चीज़ बताई गई है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे। न्यूट्रोफिलिया यानी न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाना बैक्टीरिया इन्फेक्शन में होगा। लिम्फोसाइटोसिस यानी लिम्फोसाइट का लेवल ज़्यादा हो जाना वायरल इन्फेक्शन में होता है, जैसे मम्स और मीजल के इन्फेक्शन हो गए। और एसिनोफिल्स के लेवल ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ पैरासाइट एंड एलर्जी। कुछ सीवियर रिएक्शन यानी सेप्सिस भी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाती है TNF की या इंटरल्यूकिन 1 की, तो सेप्टिक शॉक हमें लगता है, जिसकी वजह से हमें एसिडोसिस और हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये थे हमारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन डेफिनेटली लीव अ कमेंट, आई विल गिव आंसर टू यू। सो टेक केयर, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टिश्यू रिपेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।